Good evening, everyone, and welcome to this webinar where we are going to interact with women weavers from Kota. So I would like to invite Anjali to give us a brief introduction about this session and setting up a context for this webinar. Thank you, Showman. We at ICA have been associated with the women weavers of Kota since 2014. And since then, we've worked with them on various levels. We've done design development workshops with them, some forward, backward linkages, and other capacity development workshops with all of them. Last year, due to the lockdown, the complete value chain was disrupted. And when the second wave hit, the village of Kaithun, where most of these women weavers live, was very badly hit. When we wanted to start working again with them, we were wondering what to do with them, how to come out of this gloomy situation. That is when we consulted Lokesh. Lokesh has been associated with ICA in the past. He's also worked with us on other projects. And we came up with this very interesting idea of getting these women together to talk about their legacy, their work through a very different medium, which was of storytelling by making videos. And that gelled in very well because now a lot of craft groups are getting on the online platforms and they don't have the right medium of telling their stories. So it worked out very well, and we thank Lokesh for the wonderful workshop that he conducted for us. And today we are going to see some snippets that came out of that workshop. हमारे साथ कोटा की जो बुनकर हैं वो भी हैं और आज हम उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी सुनेंगे. And I welcome Lokesh now, who will tell us more about the workshop, and we'll hear these women. Hi, Lokesh. Thank you, Anjali, and thank you, ICA, for organizing this. So I will speak both in English and Hindi. तो जब मुझे आइका ने कहा कि आप क्या वर्कशॉप ऑफर कर सकते हैं कारीगरों के लिए, तो मैं पहले भी कोटा जा चुका था और मुझे लगा कि अगर वो उदास हैं तो क्यों ना हम उनसे, जब हम अपना कोई भी दुख हो किसी के साथ शेयर करते हैं तो दुख हल्का हो जाता है, हम किसी के साथ बातचीत करें. सो व्हाट आई थॉट वाज व्हाई नॉट हैव अ डायलॉग, and a dialogue which actually celebrate their legacy, like Anjali said. So we had a week long, almost a week long workshop where the women spoke about different things, what they were facing, the challenges. But eventually what we did was that we divided the women in different themes which emerged out of natural discussion with them. So if you look at any craft, it has a history, it has a heritage to it, it has a past, present and a future. So इसी तरह से हमने अलग अलग themes बताई कि इतिहास, history, उनका क्या community है. So they also take pride in their work of who they are, what they make. और वर्कशॉप में बार बार मैंने उनको याद दिलाया कि आप मजदूर नहीं हैं, आप कारीगर हैं. So sometimes the women said that we are labor and that's how the market see us. So I said, no, you are not a labor, you are actually an artisan. One of the challenge which I think Kota women face at a macro level and at a micro level, there are two challenges. One is that a lot of time they are undercut by a big master weaver. Of course, not all weavers are like that, but sometimes people exploit them financially and they hardly get anything out of their wages. And some of the women are hand to mouth. The other bigger problem which is faced is that at a national level, we all love Kota textile. I'm wearing one, and but mostly people don't realize that what they buy is power loom made by machine, not by hand. So those were two challenges. So what better than connecting the women artisan directly to the end consumer
by making these short videos, by telling their stories. And what I realized was that some of the women didn't even had a smartphone. तो कई महिलाओं के पास वीडियो वाला फोन नहीं था, तो उनके परिवार या दूसरी महिलाओं या पड़ोसियों ने मदद की. So their friends, family friend, or somebody in the extended family gave them a phone. So of course, the workshop was with almost 50 women. Not all of them have a social media account, but I think at least 50% or around that have that, which itself is a first step. And I think we have a long way to go. So in that series, this is another step. So I'm really proud of all the women. बहुत अच्छा सबने वीडियो बनाए. So some of them were holding camera for the first time. They understood what is composition. They understood simple thing, basic fundas, that how to keep a camera not to have a shake, how to, some of them even on their own did editing, which was very gratifying and surprising. So I would like to applaud for the artist. Let's start with an applaud for them. And over to you, Shomen, now. Thank you. I think Shomen है नहीं तो Karnakar, can you play we are going to play a small edited version of the videos that the women made. So Karnakar, can you play that please? मैं कोटा डोरिया की कारीगर हूँ और मैंने वीडियो बनाया पहले बार. जैसे 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोविड से हम लोग जूझ रहे हैं. पहले तो हमारे पास एक माध्यम था एग्जीबिशन में जाकर सेल करने का, जो कि अभी पिछले 2 साल से वो माध्यम अभी हमारा एक तरीके से रुक सा चुका है. तो हम लोगों को मोबाइल पे मतलब अपने प्रोडक्ट को दिखाना पड़ रहा है और ऑनलाइन सेल के लिए हमें एक माध्यम चाहिए जिससे हमें मतलब बहुत मदद मिलेगी कि हमने अपनी कहानी बनाना सीखा, हमने अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सजाया, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को सजाकर उसकी पिक्स ले सकते हैं हम और भी अच्छी तरीके से, जिससे हम हमारा जो कस्टमर है वो हमारी कहानी को पढ़कर उसे समझ करके और मतलब हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए उसके अंदर मतलब एक वो पैदा हो कि हाँ वाकई में बड़ी खासियत है इस प्रोडक्ट की और इसके अंदर कुछ कहानी सीखी है जिसके पीछे मतलब एक आत्मविश्वास, एक हौसला है बुनकरों का, तो उसे बढ़ाने के लिए ये एक हैंडलूम का कपड़ा है, तो इस वजह से भी मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित हो इसकी तरफ. इससे क्या होगा? ये रंगाई हो जाएगा, फिर बात जुड़ेंगे, फिर भी लगाएंगे, फिर इसकी साड़ी बनेगी. अच्छा, बुनाई का कोटा डोरिया का, इससे ये राज है, इसमें एक धागा डलता है, फिर उससे बुनाई होती है. ऐसे करके हम अपना कोटा डोरिया साड़ी बना के तैयार करते हैं. और इससे ये जो दम है इससे शटल इधर से इधर डालते हैं, फिर इधर शटल लेना है. ठीक है. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुस्कान है, मैं केतुन की रहने वाली हूँ, कोटा डोरिया की कारीगर हूँ. और कोटा डोरिया की साड़ियों ये कनपाटी है, इसके द्वारा ये जो किनारी है ये एकदम कड़क आती है. ये तिल्लियाँ हैं, इनके द्वारा इन डिज़ाइनों को निकाला जाता है.
और ये जो आप देख रहे हैं ये तुर है, इसके द्वारा इस साड़ी को इसमें लपेटा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं जब हम इनको ऐसे उठाएंगे, तो ये जो धागे ऊपर उभरे हुए हैं इसके नीचे से तिल्लियों को निकाल इस तरह की डिजाइनों को निकाला जाता है। हेलो, माय नेम इज सोनम अंसारी और मैं केतुल से बिलोंग करती हूँ। मैं आज आपके सामने ये मतलब बुना हुआ दुपट्टा दिखा रही हूँ। इसमें डबल शेड यूज किए गए, मतलब डबल धागों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक तो ग्रे धागे और एक इसके अलावा यहाँ पर ऑरेंज धागों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये डबल शेड इसको और ज्यादा मतलब खूबसूरत बना रहे हैं। तो अगर आप इसे चाहें तो ग्रे दुपट्टे में भी इसको कैरी किया जा सकता है। इसके अलावा ऑरेंज दुपट्टे भी इसको कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बॉर्डर में यहाँ पर ये रेड फ्लावर का यूज किया गया है जो कि इसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका रेड कुर्ती पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 4 कलर लगे हुए हैं, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन। ये काफ़ी सुंदर इसमें लग रहे हैं और इसको हम स्कार्ट बोलते हैं। ये जो इसमें जरी का काम भी है, खतों के बीच जो ये बूटी डाली गई है बहुत ही सुंदर लग रही है। थैंक यू करुणाकर वीडियो प्रस्तुत करने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए और अंतिम में हम आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो हम ज़रूर लेंगे। तो व्हाट यू लोकेश? यस, तो अब हम सब महिलाओं को बुला सकते हैं, वो एक एक करके परिचय दे सकते हैं। तो सबसे पहले कौन बताएगा? हेलो शाहीन जी, आप शुरू करेंगे। जी जी, मेरा नाम शाहीन है। मैं केतन, कोटा, राजस्थान की निवासी हूँ। मैं बुनाई का काम लगभग 25 सालों से कर रही हूँ और ये काम मैंने अपने परिवार में सीखा है। एक्स्ट्रा सिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ की महिलाओं को, वो देखते देखते कब सीख जाती है उनको खुद को भी पता नहीं होता है। और महिलाएं इस वजह से यहाँ इतनी डिपेंड है कि वो अपना हाथ खर्च खुद चला सकती है। पहले बुनाई का काम पुरुष भी करते थे, पुरुष ज्यादा थे, लेकिन एक ही परिवार के सारे लोग एक काम को करते थे, इसलिए आमदनी थोड़ी कम थी, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी घर खर्च चलाने में। तो पुरुषों ने दूसरा जो है काम शुरू कर दिया है और महिलाओं ने बुनाई का काम जो है वो शुरू किया है। पूरी बागडोर अब महिलाओं के हाथ में। लगभग 95% महिलाएं अब कोटा डोरिया का काम करती हैं। औरतें जो हैं घर का काम भी संभालती है, महिलाएं जो बुनकर हैं, और बुनाई का काम भी करती है, जिससे परिवार को आर्थिक मदद मिलती है। और साथ में जो बेटियां हैं वो देखते देखते काम सीख जाती हैं, तो उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। और ये जो कैथुन में जो कम्युनिटी है वो अंसारी कम्युनिटी के लोग यहाँ ज्यादा निवास करते हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। उसके साथ साथ आजकल यहाँ लड़कियां बुनाई के साथ एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही हैं। पहले लड़कियों को पढ़ाई पर नहीं फोकस किया जाता था कि बेटियां हैं, लेकिन अब लड़कियां खुद काम करके अपने एजुकेशन का खर्चा उठा सकती हैं। साथ में यहाँ पर लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता, बेटी होने पर खुशी जाहिर होती है, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि बेटी हुई है तो थोड़ा हमारा जो है आर्थिक मदद हो जाएगी। और उसके अलावा बेटियां परिवार को संबल प्रदान करती हैं। यहाँ की बेटियां
जो है वो पूरे कैथुन का नाम रोशन किए हुए हैं देश और दुनिया में। और उसके साथ साथ जो है यहाँ की शादियाँ और त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। त्योहारों में ईद है, बकरीद है, रबीउल अव्वल है, वो काफी उत्साह से मनाते हैं लोग। और यहाँ जो बेटियां हैं उनकी शादियां यही लोग करना पसंद करते हैं कैथुन में। तो सारे कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शादियां करते हैं तो लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि जब अलग जगह के लोग आके या नए लोग आके देखते हैं तो बड़ा ताज्जुब करते हैं कि इतने लोगों का खाना कैसे बना लेते हैं या इतने लोग शादी में कैसे शिरकत करते हैं। तो खूब एंजॉय करते हैं यहाँ हर त्योहार, हर फंक्शन को। और यहाँ के लोगों की जो है वो मेल मिलाप वाले लोग हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। यहाँ हर चीज को एक साथ मिलकर दुख सुख को दूर करते हैं। Thank you, Shaheen ji. So for our international audience, I'll just summarize the key points, what she said. She's very proud. She's been learning, she's been weaving since 20 years. And she said that women don't have to learn weaving. They see it at their home and they imbibe it. So it's not something they have to be trained. So she also shares that it is almost 90% of the women are now weavers. The men have mostly moved away from this profession. And she says that most of the women are very, they work like a co-op. They are helpful to each other, and they belong to the Ansari community. And Eid is a prominent festival which they celebrate. And she's very proud of she herself is a teacher. And Shaheen ji is very proud of the fact that as a woman, she can be self-sustainable because of weaving. So they don't have to ask money from men and they're not dependent. So this craft is actually empowering the women. Thank you. नेक्स्ट मैं रजिया जी और शहनाज जी आप दोनों को बुलाना चाहूंगा। आप अपना अनम्यूट करिएगा। आपको अनम्यूट दबाना होगा फोन में जी। नहीं, अनम्यूट हुआ नहीं है। हम आपके पास थोड़ी देर में आते हैं फिर। तो हम क्या दिल अफरोज जी और मुनाज जी के पास आए? ठीक है, दिल अफरोज। शहनाज जी अभी आ रही है आवाज? बोलिएगा। हाँ, वेरी गुड। ओके शहनाज जी और रजिया जी। मेरा नाम शहनाज है। मैं कैथुन जिला कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं कोटा डोरिया की कारीगर हूँ। मैंने इस काम को अपनी फैमिली में करते हुए देखा है। परंपरागत मेरे घर में यही काम होता चला आ रहा है। मैंने 8th क्लास तक पढ़ाई की है। फिर उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ में ही इस काम को देखते देखते, और मैं 16 साल से इस काम को कर रही हूँ। साथ ही मैं SHG से जुड़ी हुई हूँ। मेरे समूह का नाम सिद्धिका कोटा डोरिया स्वयं सहायता समूह है, जिसमें हम 10 महिलाएं हैं। और हम लोग यहाँ कैथुन में सिद्धिका कोटा डोरिया स्वयं सहायता जैसे और भी हमारे बाकी समूह हैं, जिसमें लगभग 108 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सब बुनाई का काम कर रही हैं। हमने हमारे समूह को MSME में रजिस्टर करवा रखा है 2 फरवरी 2018 से। तो हम सब लोग एक साथ संगठित होकर अपनी कला को देश विदेश में पहुंचे ये लोगों तक, जो लोग इसके बारे में जानते हैं और जो नहीं जानते हैं। आज हमें मौका मिला कि इस माध्यम से हम अपनी कला को ज्यादा आगे तक लोगों तक जो नहीं जानते उन तक पहुंचा सके। वैसे कोटा डोरिया अपनी अद्भुत कला और कलात्मकता के कारण देश विदेश में जाना जाता है। तो मुझे मौका मिल रहा है आज अपनी कला के बारे में बताने के लिए। हमारे यहाँ सभी महिलाएं वीविंग का काम करती हैं और इसमें करते करते वीविंग करते हुए जब वो एज ओल्ड में आती है, 45 साल
तक जब उनकी उम्र हो जाती है तो फिर उनको दिखने की थोड़ी परेशानी आती है आंखों की में, तो वो जो साइड के काम होते हैं जैसे बॉबिन्स बनाना, वर्क तैयार करना, तो हमारी महिलाएं उसमें अपना काम करके और अपनी जीविका में उनको बहुत हेल्प मिलती है कि वो मतलब एज ओल्ड में आने के बाद भी अपना एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए इसमें काम करती है। हमारी महिलाएं घर में ही रह करके ये काम करती हैं जिससे उनका परिवार भी आसानी से, किसी को भी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो अपने बच्चों को, परिवार को संभाल कर ये काम बहुत आसानी से अपने घर में कर सकती है। और हमें मतलब गर्व होता है कि हम एक ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो कृषि के बाद एक अपनी पहचान रखता है कि हम लोग हैंडीक्राफ्ट का जो काम करते हैं तो अपने एक पहचान बना के रखता है। और काफी लोग जब यहाँ पर विजिट करते हैं तो इस काम को देख करके कि ये इतनी अद्भुत कला है और आप लोग कितनी बारीकी से, कितनी महीनता के साथ इसको करते हो, काफी खुश होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर विजिट करके। तो मैं अपनी सभी ऑडियंस और जो भी हमें देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी आप लोग आए, क्योंकि आज तो हम आपको इंटरनेट के माध्यम से बता रहे हैं, आप प्रैक्टिकल भी आकर यहाँ विजिट करिए। साथ ही हमारी महिलाएं 2018 में लेक्मे फैशन वीक हुआ था, तो उसमें हमारे एसएसजी से ही शाहीन जी और मैं शहनाज, हम दोनों ने लेक्मे फैशन वीक में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमने अपने हाथ से बनाई हुई अद्भुत कलात्मक कपड़े को, साड़ियों को, उसमें हमने दिखाया है लोगों को। तो काफी अच्छा रहा था हमारा वहाँ पर लेक्मे फैशन वीक का हमारा ये सफर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सभी के बीच मैंने अपनी बात को रखा। थैंक यू। Okay, just a few highlights of what Shehnaz ji said. Dhanyawad Shehnaz ji, thank you. So Shehnaz ji has studied till 8th standard in the school, and she also has a registered self-help group, and she's where there are 10 women, but they are connected with over 100 women. And Shehnaz ji is very proud that she's been to Lakme Fashion India Week, where she showcased her creation through an event. And what Shehnaz ji says, what is beautiful about the craft is that the women don't have to go outside, which means that so they weave at home. So every woman have a loom at home. So they don't go to a factory, which means that they can take care of their children at home side by side as they're weaving. What she also shares is that the women are contributing at all stages of their life in the craft. So up until the age of so Kota Doria is a very delicate fabric and it requires a very good eyesight. So she says until the age of 45 the women weave the fabric. After their eyesight is not so good to sit on the loom and weave, then they support in other activities such as making the bobbin or reeling, the activities, for example, what you see in the video. So all the women at all ages of their life are very much involved. And before this also, Shaheen ji had said that actually when girls are born in their families, they don't mourn. So they are happy because the girls are very hardworking and they contribute to the household in many ways. So thank you, Shehnaz ji, और अब रजिया जी के पास आते हैं हम. So now over to रजिया जी. हेलो, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा रजिया जी. हेलो, नमस्ते, सलाम सभी को. ये मेरा नाम रजिया सुल्ताना है. मैं केतन कोटा राजस्थान से की निवासी हूँ और मैं कोटा डोरिया का लगभग 17-18 साल से कोटा डोरिया का ही काम करती हूँ. इसकी कोटा डोरिया की जो हमारी क्वालिटी है वो नेचुरल धागों से बनती है. जो सारी कोटा डोरिया की वो एकदम नेचुरल धागे हैं और उन धागों को जो हम डाई करवाते हैं एज फ्री डाई होती है. एज फ्री डाई से मतलब पहनने वाले को कुछ भी नुकसान नहीं होता है, ना डाई को नुकसान होता है और ना ही ये पानी, अगर पानी में मिलता है ये पर्यावरण को कोई प्रदूषित नहीं करता है. और ये जो एज फ्री डाई की जो साड़ी होती है वो एकदम ना स्किन प्रॉब्लम, मतलब इससे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होती है.
और ये कपड़ा जो हमारा होता है कोटा डोरिया का, वो बहुत ही हल्का, सॉफ्ट, मुलायम, पारदर्शी होता है और उसको पहनने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, पहनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। ये कपड़ा कोटा डोरिया का जो कपड़ा होता है वो पहनने वाले को बहुत ही अच्छा लगता है। इसको जब हम पहनते हैं तो हर मौसम में हम इसको पहन सकते हैं। ये किसी भी मौसम में हमें स्किन प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसी बात नहीं होती कोटा डोरिया में, क्योंकि ये एकदम कॉटन और सिल्क के धागों से बना हुआ होता है। तो कॉटन हम हर मौसम में यूज कर सकते हैं। और कॉटन की जो धागों से हम साड़ी बनाते हैं वो चेक्स बनता है साड़ी में। तो चेक्स में 6 धागे सिल्क के होते हैं और 8 धागे कॉटन के होते हैं, तो उसी से एक चेक्स बनता है। चेक्स के दौरान हम जब साड़ी कंप्लीट करते हैं, पल्लू वगैरह साड़ी कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पे हम एक GIG जो हमारी मोहर है वो हम एंड में उसको बुनाई के द्वारा ही हम निकालते हैं। तो वो जो उससे हम प्रमाणित कर सकते हैं कि मतलब ये जो हमारी साड़ी है कोटा डोरिया की, ये उत्पाद हमारे पास ही है और कोई इस उत्पाद को नहीं कर सकता कोटा डोरिया का। तो हमारा जो कोटा डोरिया का जो मोहर है, जो GIG का इस्तेमाल हम करते हैं, वह सरकार द्वारा मान्यता हमें प्राप्त हुई है। सर, Thank you. Dhanyavad, Razia ji. So a few highlights of what Razia ji said. She says that a pure yarn is used, so it is not synthetic, it's pure silk or pure cotton. And although they use chemical dyes, but these dyes are azo-free, so they are not harmful to the skin. And the fabric, she's very proud of Kota fabric, which is their heritage, is very soft, it is very light, and she says it is very comfortable to wear both in the winter and also in the heat. And she says the identity is the checks which the warp and the weft creates in Kota Doria. And they also have a GI. So GI is geographical indication, which they weave that logo of GI at the end of the sari. So that authenticates that it is hand woven. Thank you. ओके, तो अब हम आएंगे दिल अफरोज जी के पास और मुन्नास के पास। ओवर टू दिल अफरोज। मेरा नाम मुनज़्ज़ा है। मैं खुशनुमा कोटा डोरिया स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ और मैं एक बुनकर भी हूँ। मैं आपको कोटा डोरिया साड़ी की प्रोसेसिंग के बारे में बताऊंगी। कोटा डोरिया साड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले कच्चे रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन, सिल्क और जरी को लिया जाता है। इसमें हम जो सिल्क का धागा यूज करते हैं वो बहुत ही महीन होता है, जिसे जो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बारीक धागा होता है। इस बारीक धागे को हम बोबिन पर भरकर ताना तैयार करते हैं और ताना तैयार होने के बाद हम इस ताने पर डाई का काम करवाते हैं। इस पर कलर किया जाता है, जो मैं खुद भी करती हूँ। मैं डाई का काम करती हूँ और डाई कंप्लीट होने के बाद हमें इसकी साइजिंग करवानी होती है। साइजिंग की प्रोसेस होने के बाद इसे हम जाले और राज के साथ लूम पर सेट करते हैं। लूम पर सेट करने के बाद हम इसे जाले में जो है डिजाइन भरी जाती है और उस डिजाइन की सहायता से ही हम साड़ी में डिजाइन डालते हैं। जो जाले में सेट की हुई होती है उसी की सहायता से साड़ी में डिजाइन डाली जाती है और इस तरह कोटा डोरिया साड़ी की वीविंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और साड़ी तैयार होने के बाद हमें पल्लू की जगह पर GI मार्क लगाना जरूरी होता है, जिसे हम हाथ से बुनकर लगाते हैं। बस कोटा डोरिया साड़ी की प्रोसेसिंग जो वीविंग की है वो कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद। Thank you, Munaz ji. So Munaz told us, she showed us a sample of very fine cotton yarn, which is of very high count. So she actually took us to step by step how the weaving is done. And I'd like to add something that during the workshop was on, then Munaz's brother was in Hyderabad or in another city for an exhibition. And she told me that the brother was actually just showing the fabric and trying to sell it to customer. But then she told her brother of our workshop of storytelling. And she said then her brother decided that
he should actually tell customer not just what is the product and the price, but a little bit about history. And I felt that was like great. That's what, and I feel that in some way that is what all of them are doing, that they are not just showing the product, but they are also able to express about one aspect of the craft. So thank you. Okay, Dil Afroz ji. Yes, hello sir. मैं सभी को नमस्ते सलाम जी। मेरा नाम दिल अफरोज है। मैं सिद्धिका कोटा डोरिया स्वयं सहायता समूह की प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको डिजाइन डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहूंगी। पहले के जमाने में कोटा डोरिया कॉटन बाय कॉटन का यूज, मतलब कपड़ा बनाया जाता था, जिसमें पगड़ियां सबसे पहले बनाई जाती थी, और कॉटन बाय कॉटन का जो थ्रेड यूज होता था उसे मसूरिया कोटा कहा जाता था। मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो ट्रेडिशनल कोटा कॉटन बाय कॉटन का जो साड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये कॉटन बाय कॉटन की साड़ी है जो पहले के जमाने में बनाई जाती थी। इसे मसूरिया कोटा कहा जाता है। आप इसका एक लेयर खोल के दिखा सकते हैं? जी सर, श्योर। So Dil Afroz is showing us a very traditional Kota Doria sari, and this is a layer you can see. Thank you. सर अभी तो कॉटन बाय सिल्क का यूज होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे बदलाव आते गए, वैसे वैसे डिजाइन्स में और सभी में बदलाव आता गया है। पहले कॉटन चलता था, अभी कॉटन के साथ में सिल्क का यूज करके खत बनाया जाता है और पूरी साड़ी इसी तरीके से तैयार की जाती है। कॉटन बाय सिल्क की साड़ी में अभी मारवाड़ी डिजाइन्स की जो पहले चला करती थी, मारवाड़ी डिजाइन्स और ट्रेडिशनल लड्डू पेड़ा डिजाइन्स और पचरंगी साड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक्चुअली आज मैंने कोटा साड़ी में लड्डू पेड़ा डिजाइन की साड़ी पहनी है, आप सभी को दिखाने के लिए स्पेशली। ये लड्डू पेड़ा डिजाइन की साड़ी है जो कि what Dil Afroz is showing us is a laddu peda, which is an Indian typical sweet. So they used to make these sarees for the Marwadi community, who are traders and very fond of eating sweets. So this is a traditional design based on laddu peda. So the circle what you see. और पूजा, इसे मारवाड़ी साड़ी कहा जाता है और इसे मारवाड़ी जो महिलाएं हैं वो पूजा के टाइम पे पहनती हैं। इसी के साथ मैं आपको एक साड़ी, पचरंगी साड़ी दिखाना चाहूंगी जिसमें 5 कलर यूज होते हैं और ये भी ट्रेडिशनल है जो कि महिलाएं पूजा में पहनती हैं। Now we are seeing a Pachrangi sari. Pachrangi sari means 5 color sari, and this is a sari which was particularly worn during the puja. तो इसे पचरंगी साड़ी और इसे लड्डू पेड़ा साड़ी कहा जाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे चेंजेस आते गए, पहले के जमाने में डिजाइन के रूप में सिर्फ चौकेर डिजाइन और गोल डिजाइन और त्रिभुज के डिजाइन की बूटी निकाली जाती थी साड़ी में। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे बदलाव आते गए हैं, वैसे वैसे अभी लूम पे जाले के थ्रू नई डिजाइन की साड़ियां बनने लगी हैं, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स। तो मैं एक बर्ड्स वाली साड़ी आपको दिखाना चाहूंगी जिसमें हम लोगों ने अच्छे डिजाइन्स बनाए हैं। So Dil Afroz is sharing that earlier the designs, they didn't have jala system, so they were basic designs like stripes, checks, and now there are complicated designs which are introduced. So this is what we look at is a bird's designs. So this would be the pallu of the sari. तो अभी के पहले के जमाने में जब बूटी का यूज किया जाता था तब चपेटन का यूज कहा जाता था, जो कि हमारी भाषा में एक चपेटन लकड़ी का एक औजार कह लीजिए, जिसे लकड़ी का मतलब चपेटन का डिजाइन निकाला जाता था। अभी बदलाव के साथ साथ लूम पे जाले को सेटअप किया जाता है और जाले के थ्रू डिजाइन्स को निकाला जाता है, जिसके मतलब ग्राफ डिजाइन्स। मैं आपको एक ग्राफ भी दिखाना चाहूंगी इसी के साथ में। ये जो हमारी साड़ी पे जो हम लोग ग्राफिंग करते हैं, ये उसका ग्राफ है, ये इसी वाली साड़ी का ग्राफ है।
और इसी के साथ में हम लोग साड़ी पे हमें गवर्नमेंट मतलब कोटा डोरिया प्रोडक्ट पे जीआई का एक लोगो मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और हम लोग हमारे प्रोडक्ट को क्राफ्ट मार्क सर्टिफाइड भी है, मतलब हमारा प्रोडक्ट। तो इसमें क्राफ्ट मार्क और जीआई के साथ ये असली की पहचान के लिए यूज किया जाता है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, रियल जरी का ही हम लोग कोटा साड़ी में रियल जरी का ही यूज करते हैं, टेस्टेड जरी यूज नहीं करते हैं। Okay, thank you, Dil Afroz ji. So Dil Afroz showed us some of the designs and the evolution of design very briefly. And she also likes to add that they use real zari, not artificial. Okay, so now I will hand over to Somen. थैंक यू लोकेश। तो अभी मैं फिर से दिल अफरोज को गुजारिश करूंगा कि हमारे उनकी जो मेहनत है, उनके जो मेहनत से उन्होंने जो जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनका हम एक कैटलॉग बनाया है। तो दिल अफरोज जी, आप अगर उस कैटलॉग के को इंट्रोड्यूस करोगे हमारे ऑडियंस के लिए। जी, जो भी हमारा प्रोडक्ट है कोटा डोरिया दुपट्टे साड़ी, वो हम लोगों ने एक कैटलॉग तैयार किया है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि उसमें हमारा बैंक, अगर आपको जरूरत है कोटा डोरिया चाहिए, साड़ी चाहिए, दुपट्टा या जो भी, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कैटलॉग में आप हमारा सारा प्रोडक्ट देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने गूगल पे, फोन पे और बैंक डिटेल भी दिया हुआ है, और हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, आप सभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। So Dil Afroz just shared with us Thank the you, Dil Afroz. catalog. Thank you, sir. Sorry, Somen. Somen, so this will also go to everyone, those who Yes, have registered. those who have registered. So the catalog as well as the catalog will be shared with you, and as well as the recordings will be shared with everyone. So इसमें the catalog में payment details दिया हुआ है, तो anyone who wants to purchase can purchase by looking at the catalogs. तो अभी हमने सारी सबकी बात सुनी, हमारे व्यूवर्स की बात सुनी। अभी हम आगे जो क्वेश्चन आंसर है वो हम मेरे पास 2 क्वेश्चंस आए हैं, जो अगर कोई भी जो हमारे साथ है व्यूवर्स, तो वो उत्तर दे सकते हैं। कि पहला प्रश्न है कि वीविंग का प्रोसेस क्या है कोटा बेस फैब्रिक का, और ये कैसे रिमेन स्टार्च रहता है, कि वीविंग का प्रोसेस वो जानना चाह रहे हैं मिस नेहा पुरी धीर। जी, मैं बताना दिल अफरोज, आप अगर बताना चाहोगे, ये दिल अफरोज, ये शहनाज, आप बताना चाहोगे? जी सर, मैं बताना चाह रही हूँ सर, मैं शहनाज बात कर रही हूँ। जैसे कि हमारी जो साड़ी है सर, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि पहले तो उच्च वर्ग के लोग ही इसे पहना करते थे, जैसे कि राजा महाराजा, बट अभी सभी लोग इसे पहनते हैं और सभी के लिए हम खासकर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जिस तरह हम जो विविंग करते हैं, तो जो हमारी लच्छी आती है उसकी डाई के बाद बॉबिन्स बना करके, और सिल्क और कॉटन दोनों धागों की हम बॉबिन्स बनाते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा लूम शुरू हो जाता है, तो लूम पर हम शटल की सहायता से लूम के ऊपर बैठ के हम अपनी विविंग का काम करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मेरे पास शटल है।
बनाना चाहूंगी सर। ये हमारा शटल है। इस शटल की सहायता से, जैसा कि हमने वीडियो में भी हमारे व्यूवर्स को बनाते हुए दिखाया है, ये शटल है हमारा। लच्छे का हम इस तरीके से बॉबिन बनाकर और शटल के अंदर लगाते हैं, और जो हम वीविंग वर्क करते हैं वो इस तीली की सहायता से, हमें जरी वर्क करना हो तो वो जरी से भरा जाता है, और हमें जैसे कॉटन वर्क करना हो तो कॉटन की, तो इस तरीके से हम कई तरह के जब डिजाइन बनाते हैं तो अलग अलग थ्रेड हम हमारी इस तीली पे भर के और हैंड वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस वीविंग का शटल से चलता रहता है, और जो डिजाइन वर्क का काम होता है वो हम तीली की सहायता से अपने लूम पर करते रहते हैं। और मैं आपको, ये सिल्वर जरी है, ये हमारा गोल्ड और सिल्वर हम दोनों इसमें इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सर। हेलो शोमेल, आप म्यूट पर हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, हेलो, हाँ, हमारा अगला प्रश्न है कि जाला और जकार्ड सेम है या अलग है? दोनों अलग अलग है। जाला क्या होता है वो अगर आप हाँ जी। सर, जाला भी धागों में ही सेट होता है और जकार्ड भी धागों में ही सेट होती है, बट डिफरेंट ये है कि जाले को हाथ से उठाया जाता है और जकार्ड को पैर में ही, वो मतलब जैसे पैडल टाइप का सिस्टम होता है। हम जो विविंग करते हैं उसमें तो 2 पैडल होते हैं हमारे, और जब जकार्ड हमारे लूम पर सेट हो तो उसमें 3 पैडल होते हैं। तो विविंग वाले 2 पैडल राइट और लेफ्ट चलते हैं। फिर जब वो हो जाता है खत्म, तो जब हमें जकार्ड का इस्तेमाल करना हो तो हम जकार्ड वाले पैडल को दबाकर धागे सारे ऊपर आ जाते हैं और हम वर्क का काम शुरू कर देते हैं। तो जाला एक अलग है, उसमें तो हमें अलग से हाथ से हैंड से उठाना पड़ता है, और जकार्ड में पैर से ही सारा सिस्टम सेट हो जाता है, तो पैर से दबाते ही। और जो ग्राफ का आता है इसका, तो जकार्ड में तो पुट्ठे के ऊपर वो सारी डिजाइन बनाई जाती है और उसके एक माला टाइप बना करके जकार्ड के साथ डिजाइन सेट किया जाता है। और ग्राफ में जो जाला आता है तो उसके साथ ऊपर भी एक जाला बंधा होता है जिसमें ग्राफिन को सेट किया जाता है। जैसा कि दिल अफरोज ने आपको ग्राफ का ब्रेड वाला जो बेड का डिजाइन था वो दिखाया था, तो उसको जाले में सेट करते हैं। और जकार्ड पे काम करना हो तो उसको पुट्ठे के जो पुट्ठा जो आता है तो उसके ऊपर उसको डिजाइन को करवाया जाता है, फिर उसको जकार्ड के साथ सेट किया जाता है, तब हमारा जकार्ड से डिजाइन बनता है। उसमें साड़ी बनाने में थोड़ी आसानी, थोड़ा जल्दी काम होता है, और जाले में थोड़ा क्या है, उठाते तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ये भी उसमें फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद शहनाज। हमारा अगला प्रश्न है फ्रॉम ए सावंत जी से। सो ये प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि सिल्क और कॉटन yarn का काउंट क्या होता है? जी सर, हम इसमें कॉटन तो 100 नंबर और 120 नंबर यूज करते हैं, और सिल्क 18 से 20 हम इसमें यूज करते हैं, और 22 नंबर का हम इसमें कतान यूज करते हैं, 20 से 22। ओके, सो हमारा अगला प्रश्न है फ्रॉम पूनम दास। वो जानना चाह रही है कि हमने अक्सर देखा है लूम में पुरुषों को काम करते हुए, तो वो जानना चाह रही है कि ये जो हमारा कोटा डोरिया का क्राफ्ट है वो विमेन ही करते हैं या फिर पुरुष भी करते हैं? जी सर, आज से लगभग 20-25 साल पहले इसमें पुरुष ज्यादा थे और महिलाएं कम थी, बट थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि जब पुरुष और महिला वही काम करते हैं तो थोड़ा क्या है, एक ही जगह से जब पेमेंट आता है तो घर को चलाने में थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन और बाकी दूसरे खर्च भी होते हैं। तो पुरुष काफी टाइम पहले कुछ ऐसा भी दौर आया तो थोड़ा इसके बिक्री में थोड़ा प्रॉब्लम आया,
साड़ियाँ थोड़ी मतलब एक ट्रेंड जैसे चेंज होता है ना कि कभी साड़ियों का ट्रेंड ज्यादा चलता है, कभी दूसरे परिधानों का ट्रेंड ज्यादा चलता है, तो किसी तरीके से उतार चढ़ाव आए तो उस टाइम पे पुरुषों ने बाहर थोड़ी घर में प्रॉब्लम आने की वजह से उन्होंने दूसरे काम में वो शिफ्ट हो गए। तो कोई यहाँ कारपेंटरी, कारीगरी और दूसरे बाकी के अन्य काम करते हैं, जिससे क्या है वहां से भी घर में पैसा आता हो और महिला भी अपने बच्चों को, पूरे परिवार को संभाल करके वो भी कुछ पैसा कमा सकती है। जिससे जैसे कहा जाता है ना कि एक पहिए से गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है और जब दोनों पहियों से गाड़ी चलती है तो आसानी से चलती है। तो वही एक सिस्टम है कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिला करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं, तो उससे आसानी हो जाती है परिवार चलाने में। तो अभी लगभग ज्यादा इस काम में है और बाकी के जो मार्केटिंग, ग्राफ डिजाइनिंग, जाला बनाने का पुरुष इन्हीं कामों में है, डाई वगैरह, तो वो बाकी के साइड के काम कर लेते हैं। और महिलाएं अब विविंग करने लगी है तो घर में वो आसानी से कर लेती है इस काम को अपने परिवार को संभालकर। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारे पास कि जकार्ड एंड जाला का जो प्रोसेस होता है, अब दोनों क्या एक्स्ट्रा वेप्थ होता है? हाँ सर, जाला अगर जकार्ड का यूज करेंगे तो फिर जाला बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है लूम पर। और अगर जाले से ही विवर, जो क्योंकि उसके विवर्स भी अलग अलग होते हैं, वो सारे विवर्स आसानी से जाले में काम कर सकते हैं। और जो बहुत ज्यादा जिनको एक्सपीरियंस होता है, जिनके घरों में जकार्ड का काम किया जाता है, तो वही विवर्स उस पर काम कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको मतलब जैसा एक्सपीरियंस होता है वो उसी पे काम करता है। तो ये अलग अलग होता है, जाला वाले लोग पर वही बुनकर काम करते हैं और जिसको जकार्ड एक्सपीरियंस हो तो वो उसी पर काम करता है। और ये दोनों अलग अलग लगते हैं, एक साथ सेट नहीं होते। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी सर, क्योंकि अगर जैसे थैंक यू, हाँ जी बोलिए। एक चीज और बोलना चाहूंगी इसमें, क्योंकि अगर बॉर्डर में ही हमें डिजाइन निकालना हो जकार्ड का, जी सर, अगर बॉर्डर ही में हमें डिजाइन निकालना हो केवल, तो फिर केवल बॉर्डर में सेट कर कर उसको जकार्ड को और बॉर्डर निकाली जा सकती है और बीच में उसमें हम जाला यूज कर सकते हैं। और अगर हमें पूरे लूम पर बॉर्डर प्लस बीच में सब जगह हमें जकार्ड से ज्यादा जल्दी काम हो जाता है, तो फिर उसमें केवल जकार्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न है कि आपको ये डिजाइन्स, अलग अलग डिजाइन्स बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? जी सर, जैसा कि हम मतलब शुरू से ही हमने अपने घर में इस काम को होते हुए देखा है। तो मैं भी पहले छोटा बूटी बनाना सीखा, फिर उसके बाद जब पल्लू आता है जमावार का, तो फिर उस पर हमने जमावार बनाना सीखा। इसी तरीके से जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होते गए, तो फिर उसमें जो हमारे ग्राफर होते हैं, तो वो मतलब अगर हमें 4 कलर पे डिजाइन बनाना है तो उसमें उस कलर का धागा सेट कर देते हैं ग्राफ के अंदर। तो फिर हम उस जगह वही चीज को उठाते हैं, फिर जब दूसरे कलर का नंबर आएगा तो फिर हम वो चीज उठाते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सपीरियंस हमें हो जाता है बनाते बनाते। थैंक यू, थैंक यू शहनाज जी। और आगे और कोई प्रश्न है तो आप जरूर हमें पूछिएगा। आगे अभी अच्छा, एक लास्ट इंक्वायरी है कि कितने हुक्स या होल्स जकार्ड लूम, कितने हुक्स या होल्स होते हैं जकार्ड लूम में? मैं थोड़ा सा या ये कॉमन? जी सर, होल्स के बारे में पूछ रहे हो आप? कितने होल्स होते हैं जो लूम होता है? हाँ हाँ, होल्स के बारे में, होल्स के बारे में। जी सर, हाँ, होल्स के बारे में। जी सर, इस तरीके से होने लगा कि पहले तो एक जो होल्स होता था वो केवल अपना जो पैडल होता है उसके लिए हुआ करता था, और
अलग से, जब पहले है ना मिट्टी के मकान हुआ करते थे, तो उसमें नीचे भी फर्श पर भी मिट्टी का ही हुआ करता था। तो वीवर रखा करते थे कि अपना हॉल भी पूरा नीचे का मिट्टी के उस पे ही, पिटलूम का जो वो पैडल होता है, तो वो नीचे गड्ढे में रहा करता था। और जो हमारे वो जकार्ड का जो साइड का वो होता है बॉर्डर के लिए, तो उसे अलग अलग किया करते थे। लेकिन और आजकल ऐसा हो गया कि हम लोग फ्रेम लूम पर भी काम करने लगे हैं, तो आजकल हम एक ही होल हो जाता है वो नीचे पूरा, जिसपे है ना उसको साइड से कटवा देते हैं। उस पे अगर हम पत्थर रखते हैं तो उसको उतना ही चौड़ा रखते हैं कि हमारे सारा जो जकार्ड के वो फ्रेमिंग आ जाए। उसके नीचे हम लोहे की सुइयां होती है बड़ी बड़ी, तो वो सारे उसमें आ जाते हैं, तो हम उसी तरीके से उसको खुला रखते हैं अपने लूम के शेप के मुताबिक। तो हमारा और एक प्रश्न आया है कि आप आगे क्या सोच रहे हैं, आगे इससे आगे आप कहाँ तक जाना चाहते हो, मतलब आगे का क्या प्लान है आपका जी सर, तो मैं एज कहूँगी, अ समूह? जी सर, तो मैं कहूँगी कि मतलब बहुत सारे लोगों को विरासत में, कईयों को मतलब अपने पुरखों से जमीन जायदाद पैसा मिलता है, बट हमें हमारे पुरखों से एक ऐसी कला मिली है जो देश विदेश में अपनी एक प्रतिष्ठा बनाए रखे हुए है। और मैं चाहूंगी कि हमारी महिलाओं को इसी तरह घर में अपने परिवार को संभाल करके इस तरीके का काम मिलता रहे, और जो हमारी ऑडियंस क्राफ्ट सेक्टर में एक बहुत अच्छा अपना वो रखती है कि वो बहुत कदर करती है हमारी कला की। हमें बहुत गर्व होता है हमारे सभी ऑडियंस और हमारे लेने वाले उपभोक्ताओं पर कि वो हमारी कला की बहुत कदर करती है। हम आगे यही चाहेंगे कि इस सेक्टर से हम जुड़े रहें, और हमारी जनरेशन को, हमारी पीढ़ियों को भी हम इसी में, जिस तरीके से हमें हमारे पेरेंट्स ने इसमें सिखाया और इसी में हमने काम किया, तो वो भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसको और आगे बढ़ाएं, और हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, लोगों को जागरूक कर सके कि वो हैंडलूम से बने प्रोडक्ट का ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। क्योंकि एक मशीन में तो सिर्फ तेल भरा जा सकता है, और हैंडलूम प्रोडक्ट को पहनने पे कई लोगों का पेट भरा जा सकता है। तो मैं अपनी ऑडियंस से यही कहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा हैंडलूम का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे देश की जो स्वदेशी अपनाओ की जो नीति भारत सरकार ने चलाई है, तो वो कामयाब हो सके। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। सो हम can I add one thing, Sumin, before we move? yes, sure. So I can't resist. Yeah. There's something very beautiful and profound Shehnaz ji said, so I can't resist but to translate it. So when we asked her what is her dream, where does she wants to go forward, what's the future, she says that that people get property, they inherit property from their parents. Some people inherit land from their parents, but what they have inherited is from their parents, this craft of making. So her dream is that this craft they can also pass on to the next generation. That's what she wishes, and it lives alive. She also says that on a machine, when a cloth is made, oil is added to the machine, whereas when they make clothes, a lot of people feel happy because it brings food to a lot of plates. So it was very beautiful. Thank you Shehnaz ji, बहुत सुंदर समझाया आपने। सो अभी मैं गुजारिश करूंगा अंजलि जी कि वो वोट ऑफ थैंक्स हमारे दर्शकों को दे। थैंक्स का तो मतलब इतनी सुंदर हमने ये पूरा सेशन को समराइज किया शहनाज जी की बातों से, तो मैं आप सबका जो कैथून से आप लोग जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये ऑनलाइन सेशन में आके अपनी बात रखी, अपनी कहानी हमारे सारे दर्शकों को बताई। ये I would like to tell the audience that this is the first time any of them is going live on a platform like Zoom and conducting a session. So ये आप सबको धन्यवाद कि आप कैथून से जुड़े हमारे साथ में, कोई ग्लिचेस नहीं हुए क्योंकि कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ जो सारी समस्याएं होती हैं, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। So thank you so much all of you, और जो भी हमारे ऑडियंस है, thank you so much for taking out time and listening to the stories that
these wonderful women had to share. We will send you the catalog over email. And if any of you are interested in buying something from them, all the details are available there. These women manage their sales, they manage their inventory, they manage everything within the SHG. So please do contact them and support them in this beautiful venture. Thank you so much, everybody. Have a good night. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone.